breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English. नमस्कार, डॉक्टर्स स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मार्क लेन। नमस्कार। दूरदर्शन में हमारी कोशिश है कि हम आपको दूरदर्शन के जरिए कोविड से जुड़े हुए सभी जो आपके सवाल हैं उन सवालों का जवाब दें। साथ ही साथ यदि किसी तरह की परेशानी आपको महसूस होती है तो डॉक्टरों के जरिए हम आपकी परेशानी को डॉक्टरों के पास लेके जाएंगे और डॉक्टर्स उसका जवाब देंगे। कोविड संक्रमण हर एक नए दिन के साथ एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। मामले बढ़ रहे हैं और ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाने के साथ ही हम बुनियादी सावधानियों का पालन हर हाल में करें। घर से बाहर और दफ्तर में काम करते वक्त मास्क ज़रूर पहनें और हैंड और ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कोविड संक्रमण के नए लक्षणों को कैसे समझें और साथ ही साथ वैक्सीनेशन क्यों अपनाएं और क्यों अब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और इस वक्त जो ये कार्यक्रम डॉक्टर से स्पीक हम कर रहे हैं, इसका मुख्य फोकस रहेगा कि कोविड-19 या कोरोना वायरस की जो बीमारी है उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ रहा है उन लोगों पर जिनको संक्रमण हुआ है या उन लोगों पर जिनको संक्रमण नहीं हुआ है। वो विभिन्न माध्यमों के जरिए कोई बातें सुनते हैं तो उनके ऊपर भी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। किस तरह का ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, किस तरह से इससे निपटा जाए, इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी मार्कलिन आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। Well, thanks very much, Chandrasekhar, and welcome to this special bilingual edition of Dr. Speak. The situation is like this. More than 14 crore 19 lakh vaccine doses have been administered in the country till now, and nearly 93 lakh healthcare workers have been administered the first dose of the vaccine, and over 60 lakh have been administered the second dose, and over 1 crore 19 lakh frontline workers too have been administered the first dose of the vaccine, and over 63 lakh in fact have received the second dose. Well, over 9 crore 79 lakh people aged above 45 years have received their first dose of the vaccine, and over 1 crore people have received their second dose. So the management of COVID-19 across states and districts will be following the three main principles, which are containment, clinical and community engagement, and that is basically the way forward. So let us introduce हम शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि आपका किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप हम लगातार अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर दिखा रहे हैं, उस फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन करिए। हमारे साथ विभिन्न डॉक्टर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। एक बार फिर हम आपको नंबर बता दें, नंबर है 011233873031। ये लगातार हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस नंबर को फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है डीडी न्यूज़ लाइव, उस पर भी ये प्रोग्राम लाइव है। अगर आपका कोई सवाल है, आप फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लाइन नहीं लग पा रही है, तो आप उस पर कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट फेसबुक पेज पर देखेंगे और आपके सवाल को डॉक्टर्स के सामने रखेंगे। मार्क। Indeed. So let me introduce you to our guests on the program today. We have psychiatrists on the program today. Dr. Rajesh Sagar is professor of the Department of Psychiatry at the All India Institute of Medical Sciences, and Dr. K. Sekar is professor and head of the Center for Psychosocial Support in Disaster Management at NIMHANS in Bangalore. And we also have Acharya Pratishta, who's a yoga guru. Thank you very much, all of you, for joining us. So, well, let me start with you, Dr. Sagar. So, the big concern in people's minds is now that, you know, there's so much news that this is a double mutant strain of the virus. It's breaking all the records in terms of it's not even the antibodies in people's bodies are you know, it's not susceptible to any of these things, so people are frightened. So in this context, how would you address the situation? That's true. I think we all are aware now the kind of the pandemic which has gone to this severe proportion. And of course, with that, a lot of mental health issues are coming up, and
which the kind of news which are coming up, the kind of people who are affected. Not only this, now what we have seen that hardly we can see any house where no one is affected. I think somewhere every household is affected, and not only that, even even there are many families where the deaths also have taken place, either in the close one or distant one. So which definitely is bothering people, and there is a pandemic of COVID. At the same time, there's a pandemic of the stress related problems, mental health issues, psychological problems which is happening. To some extent, it is understandable the kind of situation we are going through, the insecurity, uncertainty, lot of worries which are there. What will happen to me? What will happen to my children? What will happen to my elderly parents? If I have a lot of questions are coming to one's mind. Yes. If I get this infection, what should I do? Where should I go? We all are hearing that the beds are not there. There are shortage of medicines, and which is news which are coming up. So I think this all is piling up and have a effect on one's mind, and which is causing symptoms like anxiety, worry, lack of sleep, and stress related problems which are coming up. And डॉक्टर राजेश हमारे पास सवाल आने शुरू हो गए हैं, तो हम एक काम करते हैं, सीधे ही अपने दर्शकों से सवाल लेते हैं। उमेश चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। उमेश, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर, आप जितने भी हमारे पैनल में मौजूद हैं, प्लीज आप इनका सवाल सुनिएगा। जी जी सर, मेरा सवाल ये है, हेलो, आवाज आ रही है? जी पूछिए। मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं, जितने ये पैनलिस्ट हैं सब बात कर रहे हैं, हम सारे लोग तो हवा में सांस ले रहे हैं, है ना, और हवा में तो सारी गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, बाकी गैसेस भी हैं। तो ये मरीजों के लिए ऑक्सीजन ही क्यों देना है? सीधे सीधे हवा क्यों नहीं यूज कर सकते? नहीं, आप तो बिल्कुल ही एक टेक्निकल सा सवाल पूछ रहे हैं। अगर जो मरीज है उसका फेफड़ा काम नहीं करेगा तो कैसे सीधे वो हवा से ऑक्सीजन ले पाएगा? फिर भी हम डॉक्टर राजेश, आप जवाब देना चाहेंगे इनके सवाल का? ना हवा से ऑक्सीजन। देखिए आई थिंक इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं कहूँगा आपका सवाल बहुत अच्छा है, और ये सब कुछ हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कोविड इन्फेक्शन है, ये एक तरह का वायरस है, इन्फेक्शन है, और ये जो अफेक्ट करता है वायरस, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वायरस हैं जिनको जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, मगर इस वायरस का स्पेसिफिक अफेक्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। और आपने देखा होगा कि कई बार कहा जाता है कि आप अपने लंग्स का एक्सरे कराइए या सीटी स्कैन करें। तो कहने का मतलब है कि ये वायरस बड़ा स्पेसिफिक है, जहाँ पे उसका जो एक्शन है लंग्स पे बहुत ज़्यादा है, और आप लंग्स पे जब आप कोई भी नुकसान पहुँचता है तो हमारी ऑक्सीजनेशन पे फर्क पड़ता है। हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और क्योंकि ऑक्सीजनेशन से ही हमारा शरीर जो है जीवित रहता है। और जब लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि लंग्स का काम है कि हमें ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो ही हम अपने बाकी अंगों को देते हैं, और ये जो हवा में ऑक्सीजन की जो परसेंटेज कम होती है, इसीलिए जो ऑक्सीजन जब दी जाती है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। तो उसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा, अक्सर ये कहा जाता है SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है आपका 95 एंड अबव रहना चाहिए, जो परसेंटेज है। अगर 92 से कम है, 90 से कम है, तब आपको हॉस्पिटल में जाना है या डॉक्टर से संपर्क करना है। तो कहने का मतलब है कि जब ऑक्सीजन पर इफेक्ट होता है तो हमें उसी मात्रा में ऑक्सीजन से उसको सप्लाई देनी होती है, जो कि ज़्यादा कंसंट्रेटेड एज कम्पेयर टू जो हमारे हवा में है। आप, मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। Okay, Dr. Shekhar, let's address some of the issues with regard to support structures for people, because when a person suddenly gets the fear of having COVID, they have to be isolated, and all those support structures somehow vanish. They fear, my family is going to be away from me, this is going to be, everyone is going to be away from me, how am I going to
handle this situation. And this is happening now because, you know, earlier there were a few cases and there was a lot of support structure, but now there are many cases and perhaps the support is becoming relatively scarce in comparison. So how are people going to handle this? The support is going to be at the level of 3 levels. One is the immediate family support. Number 2 is in terms of the relatives, and the third one is the institutions. So when we are talking about a person getting into isolation, there need not be a physical support which needs to be always coming up. Physical support के साथ आपका मानसिक support बहुत ज़्यादा चाहना चाहिए. आपका self reliance होना चाहिए, तो आपका मन में आप तो थोड़ा योजना कर सकते हैं. What are the perceived support among you? अभी तो मैं इस जगह पे जा रहा है, सभी दूर जाना चाहिए और 14 डेज जाना चाहिए. कोई लोग मेरे पास नहीं है, फिर भी उनका मन मेरे पास है, उनका आशा मेरे पास है, उनका सपोर्ट मेरे पास है. If you are able to perceive that support, there is no loss of a support. अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है मन में. इस कंफ्यूजन में आप एक स्थिति पे जाना चाहिए that all the support are there along with me. थोड़ा फिजिकली अलग रखता है मेरा फैमिली मेंबर्स. इस सिचुएशन में वो लोग क्यों अलग रहता है? क्योंकि उनका ये स्थिति नहीं आना चाहिए. उसलिए मैं इस जगह से 14 डेज थोड़ा जाता हूँ और जाने के बाद आई विल कम आउट विक्टोरियस. वो मन में रखना, थोड़ा परसीव करिए, सभी लोग आपके साथ हैं. आप उसका क्वेश्चन का अंडरस्टैंड करना चाहिए. Nobody is going to leave you in India at any cost. All your family is there along with you. थोड़ा परसीव करिए. फिजिकली there may not be a support. उसलिए और 10 और 15 दिन होता है, वो पाथवे का मेरा सिर्फ जाता है. Support system never breaks. The fabric may be interrupted now, but it is not going to be permanently interrupted. And most of you are going to come out of this particular situation until and some other emergencies occur. So 90 out of 100 persons are coming out of this successfully. So your support is always there, and think that support is going to occur to you, and don't let out your hope at any cost. ठीक है सर. आचार्य प्रतिष्ठा, एक फेसबुक के जरिए एक सवाल आया है. अनन्या शर्मा है, ये पूछती हैं कि हाउस वाइफ्स पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे सब कुछ समझते हुए खुद और परिवार का मनोबल कैसे बढ़ाएं? जी, पहले तो हम डीडी न्यूज को साधुवाद देना चाहेंगे, because I had been on several TV channels recently, but this is a wonderful initiative where you are talking about mental health, which is very, very important in present scenario. यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज हमें समझनी होगी, चाहे हाउसवाइफ्स हैं, चाहे वर्किंग लोग हैं, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है. इस वक्त काम भी घर से हो रहा है, कुछ का काम छिन भी गया है. ऐसे में एक चीज हम सबके को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि ये एक ऐसा वायरस है विच इज स्ट्रेट अवे अफेक्टिंग योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपके रेस्पिरेशन को, आपके लंग्स को अफेक्ट कर रहा है. और जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करते हैं, तो आपने अनुभव किया होगा कि जरा सी भी एंजाइटी हमें होती है, जरा सी भी चिंता, स्ट्रेस हमें होता है, टेंशन हमें होती है, तो सबसे पहले हमारी सांस विचलित होती है. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज बीइंग अफेक्टेड इज योर ब्रीदिंग. आपकी सांस बहुत तेज चलने लगती है. सो इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड, बिकॉज योग इज अ सब्जेक्ट वेयर वी नॉट ओनली टॉक अबाउट बॉडी, बट इट इज अबाउट बॉडी एंड माइंड बोथ. तो जहां आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, आपकी सांस तेज गति में चलेगी और आप देखेंगे कि सांस लेने में कठिनाई होगी. इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम मन के धरातल पर स्वस्थ रहें. मन के धरातल पर स्वस्थ रहेंगे तो हम तन की जंग को भी जीतने के लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड होंगे. अगर हम हाउसवाइफ की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर प्रेशर घर के काम का भी आ गया है, बिकॉज जो लोग लॉकडाउन में हैं या जो नहीं भी हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं, आपकी डोमेस्टिक हेल्थ घर पर नहीं आ रही है, परिवार में सबको देखना है. ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि हम नियमित रूप से योग साधना करें, और उसमें भी जो सेल्फ टॉक थेरेपी ऑफ योग विच वर्क एज अ वंडर फॉर दी मेंटल प्रॉब्लम्स, यानी हमें खुश भी रहना है
और हमें अपने आप को स्वस्थ भी रखना है। तो ऐसे में सेल्फ टॉक करें, दिन में 3 बार अट्टहास का अभ्यास जरूर करें। इट मे साउंड ऑड कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में हम अट्टहास यानी फ्री लाफ्टर, तो आप लोग सोचेंगे कि इतनी टफ सिचुएशन में हम फ्री लाफ्टर करें, लोग हमें पागल समझेंगे। लेकिन अगर आप फ्री लाफ्टर करते हैं तो ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके मूड को चेंज करता है और इस स्ट्रेस भरे माहौल से, टेंशन भरे माहौल से बाहर निकालता है। जितनी हमारी महिलाएं हैं वो सेल्फ टॉक करें, अपने आप से थोड़ी देर बात करें, अपने आप को बताएं कि ये एक दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी बिलोंग टू दैट कल्चर, जहां हमें बचपन से सिखाया गया वो दिन न रहे तो ये दिन भी न रहेंगे। ये सोच लेकर के अगर हम इस कठिन समय को जीते हैं कि वो दिन नहीं रहे, ये दिन भी नहीं रहेंगे और हम मिल करके इससे बाहर निकलेंगे, ऐसा अपने आप को आपको बताना होगा बार बार। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ आप अपने मित्र हैं, तो अपना ध्यान हमें स्वयं रखना है। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करें, प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें, अपने लंग्स को एक्टिव रखें, घर में ही थोड़ा बहुत वॉक करें, पानी खूब पिए, हाइड्रेटेड रहें, विटामिन सी से युक्त फ्रूट्स का सेवन करें, समय पर सोएं, समय पर जगें, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, रोशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से। रोशन, क्या कुछ सवाल है आपका? सर ये है कि हमारे जो रिश्तेदार है सर, उनको 4 दिन पहले बुखार आया और अभी जो है सर वो स्मेलिंग का टेस्ट मतलब लूज कर चुके हैं। उनको जो है गंध नहीं मिल रहा, ना परफ्यूम का गंध मिल रहा है, ना कपूर का गंध मिल रहा है, किसी चीज का गंध नहीं मिल रहा है। बाकी कोई सिम्टम्स नहीं है सर कोरोना का, अभी बुखार भी नहीं है, बुखार खत्म हो गया। तो दिक्कत क्या आ रही है उनको? दिक्कत सर यही आ रही है कि वो स्मेल कर नहीं पा रहे हैं, ना खाना का स्मेल उनको नाक से हो पा रहा है, ना परफ्यूम का, ना और किसी चीज का। ठीक है, डॉक्टर कोई जवाब देना चाहेंगे इनके सवाल का? जी, इसमें एक काम आप करें, आचार्य प्रतिष्ठा, आप पहले हम डॉक्टर राजेश का जी उसके बाद नहीं उनको कहने दीजिए हाँ नहीं डॉक्टर राजेश बताइए आप, उसके बाद आचार्य। नहीं उन्होंने कहा कि कुछ उनको सूंघने में प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम्स क्या बताए उन्होंने? बता रहे हैं सिम्टम कुछ नहीं है, केवल लोग खाना नहीं खा रहे हैं। देखिए ये मानना बहुत जरूरी है जो बाकी, और उनको बुखार था, बुखार खत्म हो चुका है। ठीक है, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे हमारे ये कहा जाता है कोविड इन्फेक्शन में कि एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरी भी है, जहाँ पे सिम्टम्स लक्षण नहीं होते, मगर जैसा हमने सुना कि कुछ उनको बुखार था जो है हो सकता है अब ठीक हो गया है, या बाकी भी लक्षण है, भूख नहीं है, बाकी लक्षण जो होने चाहिए वो नहीं है उनको, तो ऐसा संभव है। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर कोविड है तो अपने आप को आइसोलेट रखें, क्योंकि ये देखें कि किसी और को लक्षण ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना होगा जैसा हम सब, और वो जो है पूरा केयर करना है कि जिससे कि अपने आप का तो ध्यान रखना ही है और ये भी ध्यान रखना है कि अपना जो इन्फेक्शन है वो किसी और को ना दे। ठीक है, आचार्य प्रतिष्ठा होते हैं, लक्षण नहीं भी है तो ये ना सोचे कि वो गंध नहीं आ रही है, यानी उनको जैसा कहा जाता है 10 दिन से 14 दिन तक बुखार मेरा ठीक हो गया, लेकिन ठीक है सर, टेस्ट करा सकते हैं। ये एक सिम्टम काफी पेशेंट जो रिकवर कर चुके हैं उसके बाद बता रहे हैं, और हमें भारत से भी, भारत के बाहर से भी हमारे कई फॉलोअर्स फोन करके ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें एक छोटा सा प्रयोग बहुत लाभकारी होता है कि आप रात्रि में सोने से पहले बहुत माइल्ड सी स्टीम लेंगे, और बहुत अति नहीं करना, अति सर्वत्र वर्जित, कहा भी गया एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। बहुत माइल्ड स्टीम लेकर के आयुर्वेद में हमारा एक प्रयोग आता है कि शुद्ध गाय का देसी घी अगर एक एक ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल दे, 3 दिन सिर्फ ऐसा करना है, बहुत अधिक अवधि तक नहीं करना है, ये नहीं कि हम रोज ही कर रहे हैं। 3 दिन एक एक गाय का शुद्ध देसी घी एक एक ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रल्स में डालें तो उन्हें निश्चित रूप से इसमें आराम मिलना आरंभ हो जाएगा। ठीक है। Acharya Pratishtha, for the benefit of our viewers in English, because we are beaming internationally also, perhaps you can tell us a little bit about, how breathing exercises can help at this time, to people who are short of oxygen. Is there any yoga therapy for, to try and keep you going for a little while, perhaps, and, be positive about things, mentally positive, I'm talking about, yes. Yes. This is very important that we continue with our breathing practices even during isolation.
because I have gone through so many patients. They are feeling tired. They don't feel like doing exercise. But very simple practices that they can do right there during their isolation is, there are 3 steps which we generally share with all of them. And I would love to share all those steps here. So first is, breathe through your nose. Like you can do it even while sitting on your bed. Breathe through your nose and fill the air in your chest. So sit like this and then complete inhalation and then make a pipe of your lips and exhale. Same way you inhale again, then exhale. In the second step, we practice Nadi Shodhan Pranayam, which is alternate breathing. So sit straight, block your right nostril and inhale from your left nostril. Then block your left nostril and exhale from right. Now inhale from right and exhale from left. Third thing which we generally do is lie down on your abdomen, which is also known as prone position. Lie down on your abdomen, and while lying in the position, like lying from on your abdomen is something which helps in better inhalation, better oxygen. Also, those patients who are under isolation, this one thing they can do is just keep practicing the mild walking around their bed, because they can't go out of their room. But what they can do is mild walking around their bed. This is something which will keep their lungs activated. ठीक है डॉक्टर शेखर, एक सवाल यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो अलग हैं, लेकिन उसके अलावा अगर सोसाइटी में इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो काफ़ी, एक तरह से देखा जाए, एक डर का माहौल है। लोग तरह तरह की खबरें लोगों को मिलती हैं और उसके बाद लोगों में एक अजीब सा डर का माहौल है। ऐसे माहौल को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और किस तरह से इस तरह का जो डर है उसको दूर किया जा सकता है? There are basically 4 types of impact which has occurred subsequent to this pandemic. ये तो फिजिकल होता है आपका शारीरिक में, और एक तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है मानसिक रूप की तरफ, तीसरा था सोशल इम्पैक्ट है, 4 तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। Now, when you're talking about psychological impact, let me first state you that there is a large amount of fear, which is there commonly among the people, of hearing varied sort of a news and thinking the way they want to take it. And number 2, there is a large amount of a helplessness which occurs in the person. There is also some amount of a sadness when they get some bad news about a very close relative or somebody admitted or things like that. इस न्यूज आने के समय थोड़ा अंदर का मन में और हमारा हार्ट में थोड़ा पाउंसिंग भी हो सकता है। पाउंडिंग कुड बी अ लिटिल ज्यादा हो सकता है, वो तो एंजाइटी का रूप से हम लोगों का आ सकती है। सम ऑफ यू माइट हैव बहुत ज्यादा एंगर हो सकता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम ऑफ यू माइट फील स्लीप का डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। आपका एनर्जी थोड़ा कम हो गया, कंसंट्रेशन नहीं कर सकती है, ऐसा भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होता है। These psychological symptoms are all normal reactions for an abnormal situation which is prevailing around us, for which you are not responsible, for which हम लोग responsibility नहीं ले सकते हैं, but we can always be self-reliant from our thoughts, actions and behavior. How are we perceiving this sort of information from others? सभी लोग मान सकती है, डिफरेंट रूप से आपका बता सकती है, बट व्हाट आर यू फीलिंग? नंबर 1, टॉक अबाउट योर इश्यूज टू समबडी हु इज क्लोज टू यू। वो तो फिजिकली नहीं रहना चाहिए, आप तो आपका मोबाइल से, आपका कोई भी फ्रेंड से उनके साथ बात कर सकते हैं। वो बात कौन के साथ होता है वो तो सुनना सकती है। सो देयर इज अ वेंटिलेशन, vent out your feeling which is there, like a pressure cooker से
एक कैसे प्रेशर होता है, मन में कोई भी नहीं रखना, उसका बाहर लेके आ जाना. Though it is just not having ventilated, somebody who is actively listening to it. And if you are going to be listening to your son, your daughter who is talking about an experience, चुप करो, ऐसा नहीं बात करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बेटे बोल आपका क्या हो रहा है. So if you are able to empathize with them, even if it is a smaller issue, meaning to say put yourself in that position and think about it, वो तीसरा बात है. And always you had been loving to do something what you had been doing right from your childhood. उसका externalization of interest कहते हैं. और आपका कोई चीज में इंटरेस्ट है, वो चीज में काम करिए. अभी आधा घंटे का हो सकता है और 10 मिनट का हो सकता है. So that some interest comes into you and that brings in enjoyment into you. And last but not the least, थोड़ा relaxation exercises आचार्य जी से बताया, और some other sort of actions which gives you some amount of a relaxation, like listening to music or reading some books or seeing flowers or doing garden work. ठीक है सर. सर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलाहाबाद से, राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं. राजीव सवाल पूछिए अपना. इलाहाबाद से बोल रहा हूँ. एक्चुअली मुझे पूछना था, जब मेरे फादर हैं वो 60 ईयर्स के हैं, तो उन्होंने अभी 3 अप्रैल को इसका कोविडशील्ड का वैक्सीनेशन लगवाया था. और अभी जैसे 15 दिन के बाद से, अभी जैसे कोई इनमें सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जैसे 15 दिन के बाद से उनको जैसे बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो हल्का सा अचानक से चक्कर आता है, हिल जाते हैं. बाकी फीवर नहीं है, कुछ ऐसा सिम्टम्स नहीं है. लेकिन ये अभी जैसे इनको 10-12 दिन से हो रहा है कि ये बैठ रहे हैं या चल रहे हैं तो अचानक सर घूम जाता है, हल्का सा चक्कर आता है. हाँ जी सर, चक्कर आ जाते हैं. बैठे हुए हैं, ज्यादातर बैठे हुए हैं, अचानक से तो कुछ सेकंड के लिए, मतलब विदिन 1 सेकंड के लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है डॉक्टर राजेश. देखिए ऐसा है कि ये मान के चलिए, जैसे हमने सुना राजीव ने बताया कि फादर 50 ईयर्स के हैं और चक्कर आ जाता है, तो अब ये समझना होगा कि कोई और कारण तो नहीं है. अगर मान ली एक तो ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, या और कोई समस्या तो नहीं है, या कोई कान की समस्या तो नहीं है, तो बेसिक चेकअप कर लें. कभी जैसा बताया, लेकिन वो गिरे नहीं है, बट हो सकता है कि अगर अपना जनरल एक चेकअप करा लें और कोई पल्स में इरेगुलर तो नहीं है तो देख लें. मुझे लगता है कि वैक्सीन से रिलेटेड ऐसे जरूर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे वैक्सीन के बाद कुछ ऐसे लक्षण हुए हैं. और अगर ये खासकर अगर ये पहली बार हुआ है वैक्सीन के 2 हफ्ते के बाद, तो लेकिन फिर भी इसको जरूर इसकी इत्तला कर दें. अगर कोई ऐसी बात है, हो सकता है कि कोई मामूली बात हो, मगर फिर भी डॉक्टर से एक बार जनरल चेकअप करा लें, और हो सकता है वक्त के साथ ये ठीक हो जाए. लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक जनरल चेकअप और असेसमेंट और इवैल्यूएशन की जरूरत है, दिखा सकते हैं. खासकर अगर ये पहली बार हुआ है 2 हफ्ता वैक्सीन से रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स हुए हैं लोगों को, खासकर आया है, और इसलिए इनको रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसका डेटाबेस तैयार होता है. तो आपने जहां से लगवाया है वहां जरूर इसके बारे में बताइए आप, और इसकी इत्तला करिए. और हो सकता है मामूली चीज़ हो, मगर फिर भी इसका असेसमेंट एक करा लीजिए आप, क्योंकि असेसमेंट से ही पता लगेगा कि कोई और बात तो नहीं है. मगर हमें लगता है कि मामूली सी बात है, मे बी जस्ट अ माइल्ड इफेक्ट, बट स्टिल यू शुड टेक केयर ऑफ. So there's a question that's also come on Facebook by Satyam Sharma, and this is addressed both to the doctors as well as to Acharya Pratishtha. What techniques can help in dealing with stress and the inability to sleep at night at a time like this? Because I mean, you have a lot of mental problems and then you can't sleep. So perhaps, you know, some yoga techniques as well as some psychological treatment. We'll start with you, Dr. Sekar. Yes. First of all, about the sleep issues, let us have some sleep hygiene techniques to be followed in this particular point of a time. वो sleep hygiene में क्या-क्या चीज करना चाहिए? First and foremost, maintain a particular time according to your biological clock. Go for a particular sleep at a given point of a time.
If it is 10 बजे तो 10 बजे के शुरू कीजिए. And in sleep, there are 3 types of sleep. You would go into a slumber sleep initially, then into a deep sleep, and a rapid eye movement sleep. ये 3 वगैरह है. So if you have to enter into that sleep, avoid caffeine, coffee, avoid smoking or drinking before going for bed. You should have had your food at least 2 to 3 hours earlier to the thing and let it remain light food for the night. रात को एक गरीब आदमी कैसे खाना खाती है ऐसी तरफ खाना you have to eat like that. In the morning, eat like a king. In the afternoon, be preferable like a queen. But in the night, be like a beggar. Have light food so that digestion is occurring. Number 2, don't carry some sort of a thoughts what you had been thinking over the day. You can postpone it for the next day. So don't have much of a thought issues when you are going to bed. And if possible, you could have washed your body before you go for the sleep. These are some of our regular practices, what you need to bring in. And if you want, think about something which relaxes you over the night. Over and above that, if you're not getting sleep, the simplest activity when you're lying down, you tighten your leg muscles first, whichever part of the legs you have stretched. Like you take your feet at the back as much as possible, count 1, 2, 3, and later relax it slowly, 1, 2, 3. In the same manner, put your leg forward and give pressure to it, counting 1, 2, 3. This would have relaxed your leg first. Then tighten your thighs, tighten your chest, tighten your neck, tighten your forehead, tighten your eyes, everything 3 times, and clench your fingers like this and count 1, 2, 3 and slowly release it. Either start from the head and go to the toe, or start from the toe and to the head. Do it for 5 minutes. Your body becomes totally physically relaxed. This is a research activity, Yes. and people have found a large amount of help with this. Do a relaxation exercise Right. if you are not able to get down to sleep. Acharya Pratishta? Yes. Okay, I think Dr. Saab has already told wonderful things. There are 2 more practices which we generally do to deal with the problem of sleeplessness or insomnia. Especially at this time, we need to be very careful about what we are putting in our head, especially at the time of gadgets. All those who are not able to sleep, maximum people are not able to sleep on time, and the reason is that we are so much surrounded by screens. So make sure, as Dr. Saab said, that you need to fix the time to sleep. Once you have fixed your time to sleep, let's say it's 10 p.m., so make sure that after 9, you should not be looking at any of the screen, whether it is your mobile screen, television screen, or iPad, laptop, anything. So this one simple thing will help you a lot. Then there are 2 practices that we always recommend. These 2 practices are going to be the last impression on your brain. So make sure that you do not do anything after doing these 2 practices. So once you're done with everything, you are on your bed, you have to practice these 2 simple yogic practices. One is Pranav Ucharan, which means you sit quietly, calmly on your bed. If your bed is so fluffy, then you can just put a mat next to your bed and you can practice it there. Bring your hands in Gyan Mudra. This Gyan Mudra itself helps a lot in calming your mind. Sit in Gyan Mudra, take a deep breath, and then again take a deep breath. Minimum 3 times, maximum 13 times, you have to follow this. Second step, just lie down on your bed where you are going to sleep. With your first finger, block your ears, and then take a deep breath through your nose. Exhale through your nose, but while exhaling, create the sound of bumblebee. भंवरे जैसी आवाज हमें करनी है. तो इस स्थिति में आना.
do it for 5 times. After practicing these 2 kriyas, you will definitely feel like you really need to sleep. If not, then you may take any of the mantra, whichever path you follow. Take any of the mantra and keep chanting that mantra till you fall asleep. ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी बातचीत को जारी रखेंगे और दर्शकों से भी कहेंगे कि आपका कोई सवाल मनोवैज्ञानिक पहलुओं को लेकर के अगर हो तो आप सवाल पूछिए। आप फेसबुक पेज पर कमेंट कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, उस पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। कई सारे हमारे दर्शक फेसबुक पेज के जरिए सवाल पूछ रहे हैं अपने सिम्टम्स के बारे में, अपनी वैक्सीनेशंस के बारे में, अपने कोविड-19 से रिलेटेड जो सवाल पूछ रहे हैं। हम आपको बता दें कि अभी दिन में 2 बजे फिर हमारा एक कार्यक्रम डॉक्टर से स्पीक है जो इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस्ड है, तो वहाँ पर आप ये सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि फिलहाल हम मनोवैज्ञानिक पहलुओं पे बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर राजेश, आपसे एक हमारा सवाल है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इस माहौल में कई ऐसे लोग भी हैं जिनके नज़दीकी लोग हैं उनकी मौत हो गई है, कई ऐसे लोग हैं जिनके आस पड़ोस में कोविड के मरीज हैं, कई ऐसे लोग हैं वो सुनते हैं कि इसको कोविड हो गया, उसको कोविड हो गया। तो इन सब हालात में लोग काफ़ी, एक तरह से कहा जा सकता है कि भय के माहौल के साथ साथ लोगों में काफ़ी तरह की चिंताएं हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। तो इस सब को कैसे डील किया जा सकता है? बिल्कुल सही कहा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि पिछले साल और अब में ये फर्क है कि इस तरह की एक तो जो प्रपोर्शन है बहुत बढ़ गया है, और इसमें क्योंकि प्रपोर्शन बढ़ गया है तो बहुत सारे ऐसे सुनने में आया है कि उनके परिवार के या निकटतम व्यक्ति या दूर के रिश्तेदार उनकी डेथ हो गई है। और जिस तरह की न्यूज़ में भी आ रहा है कि क्रिमेशन ग्राउंड में किस तरह का स्थिति है, तो ये बात सही है कि एक प्रकार का डर का माहौल है, भय है और एक चिंता है और एक वरीज है कि आगे क्या होगा। तो ये बात तो है कि इस तरह की स्थिति है और इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करना या उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि इसके कई सारे पहलू हो सकते हैं, और हम तो यही कहेंगे कि जैसे हम शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं अपना, और उसी प्रकार से हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और जैसे बताया गया है कि जैसे बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हम अक्सर जैसे आप हमसे पूछते हैं कि हमें ऐसे स्ट्रेस के माहौल में हमें क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो एक एम्पावरिंग द सेल्फ, एक सेल्फ मैनेजमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे अपने आप को मालूम है कि मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना है, और अपने आप को सोचें कि मैं ऐसी स्थिति में, मैं जब बहुत चिंतित था या परेशानी में था तो मैंने क्या किया था उस वक्त में, और कैसे अपने आप को कोप किया था, कैसे उससे लड़ा था, कैसे उसको मैंने हैंडल किया था। तो वही अपने आप को सोचें। तो कहने का एम्पावरिंग सेल्फ, अब सेल्फ मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम एक मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक आपको कई सारी चीज़ें बता सकते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, आप गाने सुनिए, आप किताबें पढ़िए, आप बाकी एक्टिविटीज़ करिए, मगर ये एक मीनू है और आपको खुद मालूम है कि आपको क्या आप कर चुके हैं पहले और आप पर क्या कारगर हुआ है, क्या इफेक्टिव हुआ है। तो आप वही चीज़ करिए। और जैसे चर्चा कर रहे हैं कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, मैं कहूँगा, ऑफ समथिंग एबनॉर्मल स्टिमुलस, तो ये मान के चलिए क्योंकि हम बहुत ही विपदा की स्थिति में है और उसी का एक ये नॉर्मल रिएक्शन है, एंजाइटी है। और इस तरह की क्योंकि जब किसी भी चीज़ की तादाद बढ़ती है तो ऐसे इंसिडेंट्स और बढ़ जाते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि शायद ही ऐसा कोई घर है जहाँ पे कोई ऐसा अफेक्टेड ना हो।
लेकिन ये मानना बहुत जरूरी है कि क्योंकि एक कितनी मौत की खबर या जरूर आई है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जो आंकड़े हैं जो मौत के, वो हम कहेंगे 1.5% ही हैं, 1-1.5% ही हैं। तो 100 में से समझ लिए कि 99 लोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। सिर्फ जो है 1 से 1.5% जो है उनको ये हादसा होता है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति है परेशान है, तो ये जरूरी है कि अपने मानसिक स्थिति को समझें। और जैसा हम पहले भी कहते हैं कि हम हेल्प कहीं और से मिलेगी, हमारे आसपास ही हेल्प मौजूद है सबसे। और कोई भी ऐसी विपदा की स्थिति होती है, कोई भी डिजास्टर होता है, तो हम ये कहेंगे कि 5 चीजों का हमेशा ध्यान रखें। अब वो क्या है 5 चीजें? एक तो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपको लगे कोई भी डिजास्टर होता है, क्योंकि ये भी एक डिजास्टर सिचुएशन है, अपने आप को सिक्योर करें, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे इस बार बार कहते हैं और फिर हम दोहराएंगे कि मास्क पहनना। डॉक्टर रीवा मध्य प्रदेश से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, घनश्याम पांडे। घनश्याम जी पूछिए। जी सर, नमस्कार सर। पूछिए सर, जानकारी लेना ये चाह रहा था कि जैसे कोरोना बोलते हैं कि ये हवा में फैल चुका है, तो क्या सत्य बात है सर? अच्छा, आप ये डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा एक अभी फैक्टर है, ये हम भी कई लोगों से सुनते हैं। डॉक्टर शेखर, आप बताइएगा कि कोरोना हवा से फैल रहा है, इसके पीछे क्या प्रामाणिक स्टडी है? वो अभी तक पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं है, लेकिन ये जो फैक्ट है ये इतना बुरी तरह से समाज में फैल गया है कि अब हर तीसरा आदमी इस बारे में बात करने लगा है। और जिस तरह से घनश्याम जी भी सवाल पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग इससे भी डरे हुए हैं। डॉक्टर शेखर। As I told earlier, ये तो डर तो कॉमन फैक्टर है अभी, क्योंकि ये डर से बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी भी हो सकता है, थोड़ा रिड्यूस्ड एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस भी हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सुन रहा है। इस ज्यादा इंफॉर्मेशन में आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इस इंफॉर्मेशन में कौन सा इंफॉर्मेशन में लेना चाहिए। यू नीड मोर इंफॉर्मेशन, उसका रिलायबिलिटी क्यों कैसा है। दैट रिलायबल इंफॉर्मेशन कैन बी गॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट advisories, because they give you a research sort of a thing. First and foremost, as it was told, keep away a large amount of information which comes on your WhatsApp or the other type of a thing, and people can give you information which might be totally false. Never fall in for rumors. Rumors का नहीं देखना चाहिए. Bring in more solidarity on information what are given to you. आपका क्या क्या बोलता है गवर्नमेंट से और आपका क्या एडवाइजरीज हो रहा है, उसका ज्यादा फॉलोअप करिए। तीसरा थिंग, मोर एक्शन चाहिए। वो एक्शंस क्या क्या होता है, कीप विद इन योरसेल्फ, फॉलो रूटीन। आपका घर का अंदर क्या क्या रूटीन कर सकता है, काइंडली डू दो सॉर्ट ऑफ रूटीन। कीप अ स्मॉल लिटिल वर्क स्पेस फॉर योरसेल्फ। आपका घर का अंदर ज्यादा एक्टिविटी करिए। हैव योर टाइम एंड एनर्जी स्पेंड on issues what are there within your houses, rather than thinking about what is happening much larger in the wind or on the air and other things. The government has asked you to wear a mask even when you are at home, so that somebody new person coming, वो तो मेरा मेहमान है, वो तो मेरे को बहुत ज्यादा जा सकती है, so let him come without a mask. No, that is not the issue. So the 3 basic things what they are asking you, do that and have some accessibility and support in case there is going to be a problem for us. These are the things which is better, and the type of things what is being said, that it is comes on the air. Yes, within a 6 meters sort of a distance, the things could come from a particular person to another person if they are maintaining a close distance. So keep that sort of a physical distance, but never take away your social distance. Be connected with people and be with people and your family. Okay, we're going to take a short break, and when we come back, we'll continue with this discussion. Do stay with us. You're watching Doctors Speak.
स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं कोरोना के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पे और मन की शक्ति किस तरह से कोरोना को हरा सकती है। आचार्य प्रतिष्ठा हमारे साथ हैं। आचार्य प्रतिष्ठा, जो इंसान की ताकत है या जो मन की शक्ति है वो काफ़ी मजबूत होती है, न सिर्फ इंसान बल्कि जीव की अगर हम बात करें, और इवोल्यूशन या जो जीव का विकास है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण यही फैक्टर है कि इंसान के अंदर किस तरह की ताकत है, इंसान क्या चाहता है, वो अपनी यात्रा को उसी दिशा में लेके जाता है। तो सवाल ये है कि मन की शक्ति, मनोबल, ये इस बीमारी को किस तरह से हरा सकता है और कितना ये कारगर है। देखिए, पहली चीज तो हमें ये समझनी होगी कि योग जो है उसका विषय ही मन है, और इसीलिए कहा गया योगश चित्त वृत्ति निरोधः पहले ही सूत्र में। और फिर डॉक्टर शेखर के बिल्कुल पीछे लिखा हुआ है समत्वम योग उच्यते, यानी हम हर परिस्थिति में कैसे समान रह सके, यही तो हमें योग सिखाता है। अगर योग विषमतम परिस्थितियों के लिए ना होता तो फिर रणभूमि के मैदान में हताश निराश शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को योग का सबसे बड़ा उपदेश नहीं दिया जाता है, जिसे आज भी हम डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम से डील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, भागवत गीता। तो योग निश्चित रूप से इन विषमतम परिस्थितियों के लिए है। यहाँ पर हम 2-3 चीजें जरूर उन पर रोशनी डालना चाहेंगे, खासतौर पर एट दिस क्रूशियल टाइम ऑफ पैंडेमिक कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। देखिए, हम अपने आसपास रोज कम से कम अपने जानने वालों में या जानने वालों के जानने वालों में 3 से 4 डेथ केसेस की खबर सुन रहे हैं। ये अपने आप में आपके मनोबल को हराने के लिए बहुत है। और हम सब महसूस करें कि अजीब सा एक दुख का माहौल, एक सूनापन हमारे आसपास है, जिसको हील करने के लिए हम या तो दाएं जाएं यानी योगाभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, सेल्फ टॉक करें, जाप करें, या जो भी हमारी कुछ रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो करें, या फिर हम अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल करें। अनफॉर्चुनेटली हम इस पर स्क्रीन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, जो अगेन हमें अनवांटेड इंफॉर्मेशन दे रही है। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर टेकिंग राइट नाउ। तो 2-3 चीजें अगर सभी लोग घर पर नियमित रूप से करें तो हम निश्चित रूप से इस कठिन परिस्थिति से निकल सकते हैं। पहला काम ये कि अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, या आपके भीतर कोई माइल्ड लक्षण है, या आप आइसोलेशन में हैं, या आप रिकवर कर चुके हैं, इन चारों स्थिति में पहली चीज मेंटेन योर रूटीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाली घर शैतान का घर, तो जहां आपका मन खाली होगा नेगेटिविटी ज्यादा आएगी। तो पहला काम रूटीन सब लोग फॉलो करें। दूसरा काम, डाइट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन योर इमोशंस, ऑन योर फीलिंग्स। इसलिए आप सात्विक आहार लें, आप ऐसा भोजन लें जो विटामिन सी से भरपूर है, जिसमें खूब फ्रेश फूड्स आप खा रहे हैं। जितना डब्बा बंद फूड आप खाएंगे उतना आपको हैवी लगेगा, आपको नेगेटिव लगेगा, और आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो जनरेट नहीं होंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग ऑल द फ्रेश फ्रूट्स कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम मदर नेचर। तीसरी चीज, दिन में 2 बार का नियम बनाइए कि मुझे योगाभ्यास करना ही करना है। All those practices where we have full expansion of our chest, where we can breathe deeply, and those practices where we can control our own mind. See, we have to be master of our mind, and that is what yoga teaches us. तो वहां आप 2 बार दिन में योगाभ्यास करें। दिन में कोई एक ऐसा काम जो आपको खुशी देता है, चाहे वो नाचना है, चाहे वो गाना है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो किसी बहुत प्रिय मित्र से बात करना है, ऐसा कोई भी काम 15 से 30 मिनट तक आप अपने आप को निकालिए कि ये मुझे करना ही करना है। यू विल सी अमेजिंग चेंजेस इन योर मेंटल हेल्थ। और अंतिम और सबसे मुख्य काम ये कि कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, चाहे जिस भी धर्म से, जिस भी पद्धति से आप आते हैं, चाहे हम उसे वस्ल कहें, दीदार कहें, आत्म साक्षात्कार कहें, या सेल्फ रियलाइजेशन कहें, है वो सब योग ही। तो उसको जिस भी धर्म से आप आते हैं उसके कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का अभ्यास जरूर करें। और ये जरूर ध्यान रखें कि आप समय पर सोना और समय पर जगना। देखिए, हमारी जो एनर्जीज हैं वो सनलाइट से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनका मैच हो। तो प्रातः काल उठकर उदीयमान सूर्य के दर्शन करना आपकी नेगेटिविटी को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को हील करता है। बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, वी आर स्लीपिंग लेट बिकॉज वी नो दैट वी डोंट हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो, वी कैन वर्क फ्रॉम होम।
तो ये छोटी छोटी सी चीजें अपना करके We also have a caller online, so perhaps we'll take the caller as well. राजकिशोर झा है पटना से है। राजकिशोर झा पटना से है। आप अपना सवाल पूछिए राजकिशोर झा जी। आप है हमारे साथ? हाँ पूछिए सवाल भी। मेरा नाम राजकिशोर झा, हम पटना बिहार से बोल रहे हैं। जी जी बोलिए। तो हमको ये पूछना था, बहुत सी बीमारी के बारे में भ्रांतियां फैली हुई है मन में, तो हमको पूछना था जो हम 3 महीना से पीलिया रोग से ग्रस्त हैं, तो उसमें हम सुई ले सकते हैं या नहीं? आपको पीलिया हुआ है अभी? हाँ अभी थोड़ा सा 0.7% बचा हुआ है। 70। सवाल क्या है आपका? आपको वैक्सीन लेना है? हाँ वैक्सीन अभी हम ले सकते हैं कि नहीं? ठीक है डॉक्टर राजेश। हाँ वैक्सीन लेने के बारे में, वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं? इनको दरअसल ये इनको पीलिया की बीमारी है और ये अंतिम स्टेज पे है। पीलिया इनका खत्म होने वाला है, 6-7% बचा है बता रहे हैं। ये वैक्सीन ले सकते हैं क्या अभी? देखिए ऐसा है कि अगर कोई फिजिकल इलनेस जो है उसमें कुछ है जो कॉन्ट्राइंडिकेट है, लेकिन ज़्यादातर में तो आप ले सकते हैं। और जैसे बताया कि अगर वो ठीक हो रहा है, अगर 0.7% है एक तक होता है, अगर बिल्कुल है तो मेरे हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन आप जिस जगह पे जाएंगे आप जरूर उनको बताइए ये बात कि आपको ये हुआ है, तो वो अपने आप निर्देश अनुसार अब आप कौन सा ले रहे हैं वैक्सीन, तो वो आपको और निर्देश दे देंगे। लेकिन ठीक है झा जी, आप एक काम करिए, आप जब वैक्सीन के लिए जाएंगे तो आप अपनी रिपोर्ट्स वहां पर लेके जाइएगा। फाइनल आपका पीलिया का क्या कुछ रिपोर्ट है वो उनको दिखाइएगा जो वैक्सीन करेंगे। मार्क we'll take a final question. Dr. Shekhar, the issue here is about people and fear and indecisiveness actually because of the situation. You know, you're not very sure about what to do. You can't go and test yourself. You don't know whether to test yourself. You don't know whether you're going to go out and get the vaccine, get the virus, how to protect yourself. There are so many uncertainties in a person's mind at this time, and it is that kind of mindset that we are trying to address. What would you say to people like that who can't take a decision to do anything? They are stuck at home and they don't know what to do. There are two issues what I would like to inform these entire viewers. Number one, things what I can control, things what I can outside my control. When you're talking about things which are under your control, आपका मन का अंदर क्या-क्या होता है, you can control your words, you can control your actions, you can control your ideas, you can control your own effort, and you can control your mistakes, and you can control your behavior. But what you cannot control, which could influence you to a large number of the type of issues what you're talking about, is that the other people's actions, the other people's words, what disturbs you, that vaccine is not available, vaccine is not going to be there. These are other people's words. Whether it is not there, actually, you could have tried your own self by calling up your local corporation and asking where are the free vaccines available or paid vaccines available. Right sir. डॉक्टर शेखर, दरअसल बिल्कुल हम कार्यक्रम के अंत में हैं, तो अंतिम सवाल डॉक्टर राजेश आपसे जानना चाहेंगे। दरअसल हमने जो मनोवैज्ञानिक पहलू है उस पर तो हमने बात की है, पूरा बात की है। लोगों को थोड़ा समझना भी चाहिए कि जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हैं उसके क्या क्या फिजिकल आउटपुट उनको देखने को मिल सकते हैं, ताकि वो समझ सकें कि ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। बहुत ब्रीफ में बताइएगा सर। नहीं, बिल्कुल सही है कि इसको सीरियसली समझें। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जैसे हम अपने शारीरिक सेहत का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार मानसिक सेहत का भी ध्यान रखना है। और जहाँ पे लगे कि मुझे परेशानी ज्यादा हो रही है तो जरूर उसको व्यक्त करें और उसको बताएं कि मुझे हेल्प की जरूरत है। और क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम वो प्रॉब्लम को बढ़ते रहने देते हैं, और जब बहुत ही फाइनल स्टेज आती है तब जाके हम उसको व्यक्त करते हैं। तो अगर जैसे शारीरिक स्वास्थ्य है उसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य की भी हमें चिंता करनी चाहिए और शुरू से करनी चाहिए। और ये भ्रम है कि वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। ठीक है सर। आचार्य प्रतिष्ठा, जाते जाते कोई एक योग मंत्र बहुत जल्दी में। जी, बस इसमें ये ध्यान रखें
कि चिंता जो है वो आपके लिए कुछ नहीं करेगी, पर चिंतन जरूर करेगा। राइट इन्फॉर्मेशन ले, योगाभ्यास करें, दिन में 3 बार दिल खोल करके हंसे जरूर, जिससे आपके लंग्स भी एक्टिव रहे, मन भी शांत रहे। शुक्रिया, शुक्रिया आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिए और हमारा जो मास्क ऑफ इंडिया कैंपेन है, you know, I mean, the best way to keep yourself safe at a time like this is to wear your mask and wear it properly across your nose. And some people can wear 2 masks like me. That keeps you even safer. Thanks very much for watching. Namaskar. नमस्कार।